So today let's start with civics, unit 1, diversity. Now what does diversity means? Alag alag. If we consider in India, it is unity in diversity. अलग अलग है लोग फिर भी सब एक साथ रहते हैं. If we talk about the national anthem, so we say that Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravid, Utkal, Banga, Vindhyas, Himachal, Yamuna, Ganga, ये सब एक है. We all are one. We believe in unity in diversity. Yes. So you can read the translation of our national anthem. Though art, the ruler of the minds of all the people, dispenser of India's destiny, the name rouses the hearts of the Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravid, Odisha and Bengal. It echoes in the hills of Vindhyas and Himalayas, mingles in the music of Yamuna and Ganga, and is chanted by the waves of Indian Sea. They pray for the blessings and sing the praise. The saving of all people waits in the hand. Though dispenser of India's destiny, victory, victory, victory to thee. So सब अलग है, पर सबका एक साथ. If we listen, this echoes can be heard in the hills of Vindhyas and Himalayas. Music we can heard of this unity in Yamuna and Ganga, and is chanted in the waves of Indian Ocean. So begin with the first chapter, understanding diversity. Okay, look around you in the classroom, or you can look at your home itself. Do you see anyone who looks exactly like you do? In this chapter, you will learn that people are different from each other in many ways. Not only do they look different, but they might also belong to different regions, cultures, or religious backgrounds. These differences enrich our lives in many ways and also make them more fun. For example, अगर आप क्लासरूम में देखोगे तो आपके कोई फ्रेंड्स पंजाबी होंगे, कोई फ्रेंड्स मारवाड़ी होंगे, कोई फ्रेंड्स हिंदी होंगे, कोई फ्रेंड्स गुजराती होंगे. कोई सेम नहीं होता है ना, उनका कोई काफ़ी डिफरेंट रीजन से आता है, कोई किसी का कल्चर डिफरेंट होता है. पर ये सब जो अलग अलग होते हैं, उनके वजह से हमारी लाइफ एकदम अच्छी बन जाती है. ऑल्सो वी हैव मोर फन. फॉर एग्जाम्पल, वी सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल, दे सेलिब्रेट आवर फेस्टिवल्स. All these different people who come from all kinds of backgrounds and belong to all kinds of religions and cultures help to make India so interesting and so diverse. What does diversity add to our lives? How did India become like this? Are all kinds of difference a part of diversity? So ये सारे questions हमें पता चलेंगे, इसके answers कि हम काफ़ी डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, सब काफ़ी अलग अलग, ऑल काइंड्स ऑफ रिलीजन्स एंड कल्चर्स वी सी. तो क्या ये डाइवर्सिटी हमारे लाइफ में कुछ चीज़ें ऐड करता है? क्या इसके वजह से इंडिया एक बनता है, या ये सारे जो डिफरेंसेस है वो डाइवर्सिटी का एक पार्ट है? सो दीज आर द चैप्टर्स वी आर गोइंग टू, दीज आर द क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू गेट आंसर्स ऑफ. Yes, 3 children around your age have drawn the figures above. Use the empty box to draw your own human figure. Is your drawing similar to any of the others? The chances are that your drawing is quite different from the other 3, which you can see are quite different from each other. This is because each one of us has a unique drawing style. We do not only don't look exactly like each other, but also differ in terms of language we speak, our cultural backgrounds, the religious rituals we observe, and of course the way we draw. आपके स्टैंडर्ड्स के 3 बच्चों को बोला गया कि यू हैव टू ड्रॉ ह्यूमन फिगर, तो तीनों ने अलग अलग ड्रॉ किया. अगर आप भी ड्रॉ करोगे तो आप तीनों से सेम ड्रॉ नहीं कर पाओगे. तो इससे क्या पता चलता है कि हर एक इंसान की अपनी यूनिक स्टाइल होती है, और सिर्फ स्टाइल नहीं, हर एक इंसान अपनी अलग लैंग्वेज बोलता है, उसका अलग कल्चरल बैकग्राउंड होता है, उसके अलग रिचुअल्स होते हैं, रिलीजियस रिचुअल्स, रिलीजियस प्रोसेस दैट दे फॉलो, एंड ऑफ कोर्स उनका ड्राइंग करने का तरीका भी सबका अलग होता है. सो नाउ द होमवर्क इज, you have to fill out the following information about yourself.
When I go out, what do you like wearing? At home, what language you speak in? Which is your favorite sport? And which book you like to read? और जब आप ये कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ कंपेयर करोगे तो समझ में आएगा यू ऑल आर डिफरेंट. Now, ask your teacher to help you check how many of you have similar answers. Is there anyone whose list matches yours exactly? Probably not. But many of you have similar answers. How many like reading the same kind of books? How many speak different languages? How many different languages are spoken by students in your class? आप टीचर्स को बोल सकते हो कि कंपेयर करें तो समझ में आएगा सारे आंसर्स मैच नहीं होते हैं. कुछ आंसर्स मैच होते हैं, कुछ नहीं होते. By now, you must have recognized the many ways in which you are quiet, like some of your classmates, and other ways in which you are different from them. अब तक समझ में आ गया होगा. कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें आप अपने क्लासमेट्स के साथ सेम होते हो और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अलग होती है. Making friends. Do you think it would be easy for you to make friends with someone who was very different from you? Read the following story and think about this. क्या आपको लगता है कि कोई इंसान जो आपसे बहुत अलग है उसके साथ फ्रेंडशिप करना इतनी ईजी होगी? ये स्टोरी पढ़ते हैं then we'll think about this. I had meant it as a joke made up for a small wrecked boy who sold newspapers at the Janpat crossing at the busy intersection. Every time I cycled past, he would run after me holding out the English newspaper and screaming out all the evening's headlines in the mixture of Hindi and English words. This time I stopped by the pavement and asked for the Hindi paper. His mouth fell open. मतलब एक स्टोरी है. काफ़ी बार जो ये राइटर थे ना वो क्या करते थे, वो जोक करते थे. और एक बार ऐसा हुआ, एक स्मॉल रेक बॉय था, मतलब उसने थोड़े फटे हुए कपड़े और ऐसे पहने हुए थे, जो जनपथ क्रॉसिंग पे 4 क्रॉस पे न्यूज़पेपर सेल कर रहा था. जब राइटर वहाँ से साइकिल लेके पास होते थे तो उसके पास में इंग्लिश न्यूज़पेपर होता था वो न्यूज़पेपर सेलर के पास, एंड वो इवनिंग न्यूज़ पढ़ता था, कुछ हिंदी में कुछ इंग्लिश में. तो इस बार राइटर ने क्या किया, राइटर एक पेवमेंट पे मतलब साइड पे रोक के एंड उन्होंने बोला कि मुझे हिंदी न्यूज़पेपर चाहिए. तो जो न्यूज़पेपर सेलर था उसका माउथ एकदम ओपन हो गया है, वो शॉक. यू मीन यू नो हिंदी? ही आस्क्ड. उसने ऐसा पूछा, मतलब आपको हिंदी आता है? ऑफ कोर्स, एज आई सेड आई पेड फॉर द पेपर. मैंने बोला ऑफ कोर्स एंड मैंने उसको पेपर के पैसे दिए. वाई? व्हाट डू यू थिंक? तो उसने पूछा कि क्यों तूने ऐसा पूछा कि मुझे हिंदी आता है? तो न्यूज़पेपर सेलर ने पहले तो पॉज अटक गया एंड फिर ही से, आपको देख के लगता नहीं, बिकॉज यू लुक सो अंग्रेज. यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी? तो ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली. मतलब वो उस पॉज लेके जब उसने पूछा कि आप कितने अंग्रेज लगते हो, मतलब आपको हिंदी पढ़ना भी आता है? तो वो इस बार थोड़ा जो साइकिल पे बैठा हुआ था वो एकदम इम्पेशेंट हो गया कि हाँ ऑफ कोर्स मैं हिंदी, आई कैन स्पीक, रीड एंड राइट हिंदी. हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आई स्टडी इन स्कूल. Subject? He asked. How could I explain what a subject was to someone who had never been to school? Well, it is something, I began, but the lights changed and the honking behind me grew 100-fold and I let myself be pushed along with the rest of the traffic. अभी उसने बोला कि हाँ हिंदी एक सब्जेक्ट में पढ़ता हूँ स्कूल में. तो न्यूज़पेपर सेलर ने पूछा सब्जेक्ट क्या होता है? तो वो साइकिल पे जो बैठे थे वो कंफ्यूज हो गए कि अभी मैं ऐसे इंसान को सब्जेक्ट कैसे समझाऊँ जो कभी स्कूल गया ही नहीं है. वो उसने चालू ही किया आंसर देना कि वेल इट इज़ समथिंग. उतने में सिग्नल लाइट्स चेंज हो गए एंड पीछे से सब ने हॉन्क करना स्टार्ट कर दिया, हॉर्न बजाना स्टार्ट कर दिया. तो उन्होंने भी ट्रैफिक के साथ वो आगे चले गए. द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन स्माइलिंग एट मी होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर. भैया आपका अखबार. आप बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग. It sounded like it's the other meaning in English to be ruled by someone else. मतलब वो नेक्स्ट डे भी जब ऑथर वहाँ पे मतलब ये स्टोरी राइटर थे वो वहाँ पे गए तो वो वहीं पे खड़ा था
पेपर लेके, और उसने बोला भैया ये आपका हिंदी का अखबार, और एकदम और उसके मुंह से सब्जेक्ट, उसने पूछा कि ये सब्जेक्ट क्या होता है। तो वो ऐसे हिंदी मीडियम मतलब हिंदी बोलने वालों से ऐसे इंग्लिश वर्ड सुनना एकदम ही अजीब लग रहा था, जैसे कि ऐसा लग रहा था कि कोई किसी को रूल कर रहा है। Oh, it's just something to study, I said, and then because the red light had come on, I asked him, have you ever been to school? Never, he answered, and he added proudly, I began walking when I was so high. He measured himself against my cycle seat. First, my mother used to come with me, but I can do it all alone. तो उसने कहा कि समथिंग जो हम स्टडी करते हैं उसको सब्जेक्ट कहते हैं। फिर उतने में रेड लाइट आई, तो उसने पूछा कि क्या तू कभी स्कूल गया ही नहीं है? तो उसने कहा नहीं, एंड ही प्राउडली सेड कि मैं जब इतना था तब से वर्क करने लगा। इतना मतलब वो उसने ऑथर की साइकिल की सीट तक बताया कि मैं जब इतनी हाइट का था तब से मैंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। पहले तो मेरे मदर भी मेरे साथ आते थे, बट नाउ आई डू इट ऑल अलोन। So, where is your mother now? I asked, but then the lights changed and I was off. I heard him yell from somewhere behind me. She is in Meerut with. The rest was drowned out. लाइट चेंज हो गई, मतलब तो ऑथर ने पूछा कि आपकी मम्मा कहाँ पे है, तो उतनी देर में लाइट चेंज हो गई, तो वो निकल गए। तो उन्होंने सुना पीछे से कि वो बच्चा चिल्ला रहा था कि मेरी मम्मी मेरठ में है विथ, और फिर बाकी का कुछ सुनाई नहीं दिया। My name is Sameer, he said the next day, and very shyly he asked, what's yours? It was incredible. My bicycle wobbled. My name is Sameer too, I said. What? His eyes light up. Yes, I grinned at him. It's another name for Hanuman's father, you know. So now you are Sameer 1 and Sameer 2, he said triumphantly. Something like that, I answered, and then I held out my hand. हाथ मिलाओ समीर दो। His hand nestled in mine is like a little bird. I could still feel its warmth as I cycled away. Next day जब वो मिला तो उसने कहा कि मेरा नाम समीर है। उसने बहुत शाई होके पूछा कि आपका नाम क्या है। तो एक बार उनकी साइकिल भी हिल गई, जो साइकिल पे बैठा हुआ था। उसने कहा मेरा नाम भी समीर है। तो जो न्यूज़पेपर सेलर था उसकी व्हाट कि हाँ कि देन बोला कि समीर हनुमान के पापा का नाम होता है। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स उसने कहा, जो न्यूज़पेपर सेल कर रहा था, कि मेरा नाम समीर 1, आपका नाम समीर 2। तो उसने कहा हाँ, मैंने कहा हाँ समथिंग लाइक दैट, एंड फिर दोनों ने हैंड शेक किया। उसने कहा हाथ मिलाओ समीर 2, और उन्होंने हैंड शेक किया। और उसका हाथ इतना छोटा था जैसे नेस्ट में बर्ड समा जाता है, वैसे ही वो साइकिल वाले के हाथ में न्यूज़पेपर सेलर का हाथ समा गया। एंड जैसे ही वो आगे गए, स्टिल ही कुड फील हिज वार्मथ। The next day he did not have his usual smile for me. There is trouble in Meerut, he said. Many people are being killed in the riots. I looked at the headlines. Communal riots, it blazed, said, but Sameer, I began. I am a Muslim, Sameer, he said in answer. All my people are in Meerut. His eyes filled with tears. When I touched his shoulders, he could not look up. Next day, जो न्यूज़पेपर सेलर था, वो उसने उतने ही फ्रेंडली तरीके से स्माइल नहीं किया, और उसने कहा कि मेरठ में कुछ प्रॉब्लम है। और मैंने तो और जो साइकिल पे बैठे थे उन्होंने न्यूज़पेपर पे हेडलाइंस पढ़ी कि देयर इज़ समथिंग कम्युनल राइट्स इट ब्लेज्ड। तो जैसे ही वो साइकिल वाले बोलने जा रहा था कि बट समीर, तो न्यूज़पेपर सेलर ने कहा कि मैं एक मुस्लिम समीर हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, एंड जो भी मेरे लोग हैं, ऑल ऑफ माई फैमिली इज़ इन मेरठ। ऐसे ही बोलते उसकी आंखों में पानी आ गया। तो साइकिल वाले ने उसके शोल्डर पे टच किया, बट उसने ऊपर नहीं देखा। ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, neither the day after nor ever again, and no newspaper in English or Hindi can tell me where my Sameer 2 has gone. तो उसके नेक्स्ट डे क्रॉसिंग पे नहीं था, उसके नेक्स्ट डे भी वो समीर क्रॉसिंग पे नहीं था, ना वो कोई न्यूज़पेपर वाला था। तो वो पूछ रहा था कि कोई मुझे बता सकता है कि मेरा जो समीर 2 है वो कहाँ पे गया। वी विल कंटिन्यू विद द फर्दर स्टोरी इन द नेक्स्ट पार्ट।
Thank you.